Opening the box, you will find a charging cable, manual, a color matched shoelace and the speaker. The design and build of Fuse 100 is really good. It really looks like a more expensive product. The mesh surrounding it has a very nice feeling to it, and the rubberized top and bottom also feel really good to touch. On top, you have this point to attach a strap so you can hang it at different places, and at the center you have the power button with an infinity logo that lights up. Then you have the volume control and the multifunction button towards the edges. You can also use these buttons to change tracks and to accept or reject calls, and if you long press the play pause button, you can connect it to another Fuse 100 speaker and use them in stereo mode, which is a really nice feature to have in this price range. One small issue about these buttons is that they are not very easy to press, but it's not a big deal. Opening the flap at back will let you access the micro USB charging port and the aux-in port for wired use. The reason you have a flap is that this is IPX7 water resistant, so you can throw it in water and it will float without getting damaged. You also have a microphone on this speaker, and it doesn't sound as good as using your phone, but it works well and people on the other side were able to easily understand me. The battery life is around 8 hours, which is decent. Coming to the sound quality, it is really good for the price. Compared to its smaller sibling, you are getting a big jump in sound quality, and for watching videos on your phone, it is really good. It is also good for listening to music, but the low end is not going to be amazing because of its small size. You can switch between a deep bass mode and a normal EQ mode by holding the two volume buttons, and while on the other Infinity products, I recommended to use the normal EQ mode. With this speaker, the deep bass mode is kind of needed for music, as it kind of makes up for the lack of low end you would get with a speaker of this size. And I think that it offers a really good combination of size, weight, sound quality and price. This is a nice sounding speaker with okay bass for its size. The range is also good. Leaving the speaker in my bedroom and walking all around my house, it didn't lose connection. But when I tried to take the speaker to my car parking, I lost connection, but that's pretty normal with no direct line of sight. Now the battery life is nothing exceptional, it's good for its size. Now there is no way to know the exact battery life. The speaker does make a beep sound when the battery is very low and will try to reduce the volume automatically to save the battery. Now Philips doesn't claim any particular battery life, or at least I couldn't find any, but in my testing at around 60% volume, I got a reasonably good 7.5 hours before it finally died on me. Almost same as the Portronic Porsche, but pretty bad when compared to even the smaller HP's S6500 and even the Portronic Shell. But do remember, the BT64 has to power 2 drivers, unlike the Portronic Shell or the HP S6500. Now to charge the speaker from dead to full, it took me around 1 hour and 15 minutes, and the yellow LED indicator will turn off once charged. And yes, you can use the speaker while it's charging. Now this is a tough review for me to conclude. Why, you ask? Well, because I love the Philips BT64. It's small, portable, has pretty good sound quality, FM radio, micro SD card support, but I cannot recommend it happily, at least at its current price of 1500 Indian currency. आप सबने ARTI's कंपनी के BT90 ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड सुन ली, मैंने भी सुन ली गाइस। आप सबको कैसी लगी जल्दी से जाके कमेंट में बताइए कि आप सबको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये साउंड क्वालिटी मुझे कैसी लगी और गाइस इसमें क्या मुझे कमियां लगी, क्या मुझे अच्छा लगा इस स्पीकर में। तो सबसे पहले जो मुझे इस स्पीकर में गाइस खराब लगा वो है इसका बास और सिर्फ बास, क्योंकि गाइज इसका जो बास है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं लगा, एवरेज लगा, ना ज़्यादा ख़राब लगा ना ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बास को गाइज मैं 10 में से 7.5 मार्क्स देना चाहूँगा। तो साउंड की लाउडनेस एंड क्लियरिटी उसको मैं 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि गाइज साउंड की क्लियरिटी एंड साउंड की लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे।
आपको कैसी लगी जल्दी आके मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल तो गाइस 999 के हिसाब से जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से मैंने सोचा था कि इसके अंदर हमें ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन गाइस इसके अंदर हमें सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है। एक साइड इसके स्पीकर है, दूसरी साइड पैसिव रेडिएटर है, साथ ही साथ कुछ अदर बटन्स भी दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से गाइस मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा इसका कि प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट भी नहीं मिला। लेकिन गाइस जो स्पीकर में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। गाइस काफी ज्यादा अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो मटेरियल यूज किया गया है वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप सब एक बार इसकी साउंड सुनिएगा। कोई लोकल प्लास्टिक नहीं या फिर कोई लोकल फाइबर मटेरियल नहीं लिया गया है, इसको बिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल लिया गया है। साथ ही साथ ऊपर हमें 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं जो कि स्ट्रैप्स अटैच करने के लिए, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे स्पीकर। आपको कैसा लगा? बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो फुल चार्ज के बाद डिपेंड करता है आप इसको कितने वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, और अगर इसे आप फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो 6 to 8 आवर्स लगभग आपको बैटरी बैकअप दे देगा। और अगर वॉल्यूम इसका 50% या उससे कम है तो लगभग 10 to 12 आवर्स आपको बैटरी बैकअप ये दे देना चाहिए। और जिसके फ्रंट में 2 आपको स्पीकर जैसे लग रहे हैं, इसमें एक स्पीकर है और दूसरी साइड बेस रेडिएटर है। ये बेस रेडिएटर बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसको के टेबल के कॉर्नर पर रखेंगे तो ये बेस रेडिएटर स्पीकर को हिलाना शुरू कर देता है हल्का हल्का से, इतना बढ़िया इसका बेस है। और अगर इसको मिडल में रखेंगे तो इतना नहीं हिलता। एक बार नज़र मारते हैं, देखो। तो देखिए ये बेसी साउंड की वजह से हल्का हल्का मूव हो रहा है कॉर्नर पे रखने के कारण। तो अगर बात करें क्विक रिव्यू की तो मुझे ये स्पीकर काफ़ी अच्छा लगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, साउंड इसका अच्छे बेस वाला है जो कि इंडियंस को काफ़ी पसंद आता है। दोस्तों ये है बोट स्टोन 170, एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। ये वाटर रेजिस्टेंट है और फुल चार्ज पर ये आपको तकरीबन 6 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज दे सकता है। ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजोन पर अवेलेबल है, कीमत है 1299 रुपीज़। तो दोस्तों ये है बोट स्टोन 170 पोर्टेबल स्पीकर। ये देखिए इस प्रकार के डिज़ाइन पैटर्न के साथ में आता है, लाइट वेट है और इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है वो आपको तकरीबन 6 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज दे सकती है। ऊपर देखिए बटन्स दिया हुआ है और ये जो भाग है ये रबर टाइप फिनिशिंग के साथ में है, आप फील कर सकते हैं। ये जो भाग है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और यहाँ पर फैब्रिक टाइप मटेरियल का उपयोग किया गया है। ओवरऑल इसकी बिल्ड और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए हैंड स्ट्रैप भी दिया हुआ है, इसे आप कहीं भी लटका सकते हैं और ये जो भाग है इसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है ऑक्सिन पोर्ट जिसका उपयोग करके इस स्पीकर को एज अ वायर्ड स्पीकर की तरह आप उपयोग कर पाएंगे। माइक्रो यूएसबी पोर्ट है जिसका उपयोग करके इसमें जो बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे और एक टीएफ कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है, मतलब कि अगर आपके पास माइक्रो एसडी कार्ड में गाने हैं तो आप ये जो टीएफ कार्ड स्लॉट है इसमें डाल सकते हैं और गाना सुन सकते हैं। तो जो मीडिया कंट्रोल्स है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है और नीचे ये देखिए ये जो भाग है ये रबर पैडिंग है ताकि अच्छा ग्रिप मिल जाए। चलिए अब मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। स्विच ऑन करने के लिए जो मल्टी फंक्शनल बटन है इसे प्रेस करके कुछ देर होल्ड करना है और Power on. You've plugged into Nirvana. ये लीजिए अभी ऑन हो गया है। Your device is ready to pair. और जैसा कि आपने सुन लिया इसमें आपको वॉइस नोटिफिकेशन भी मिलता है। अब ये पेयरिंग मोड में चले गया है, ये जो एलईडी है यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। मैं मेरे स्मार्टफोन के साथ में इसे पेयर करता हूँ और आपको कुछ गाना सुनाता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो स्पीकर है इसकी क्वालिटी कैसी है। बताने वाला हूँ JBL के गो पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर के बारे में। तो भैया बेस के मामले में कोई कमी नहीं लगी मुझे, फुल एकदम बेस एकदम धमाकेदार है। जो इसका प्राइस है 1600-1700 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो इससे अच्छा स्पीकर इस प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा आपको। 1600-1700 रुपये में आपको पूरी मतलब बेस्ट क्वालिटी जो कहते हैं वो इस स्पीकर में दी हुई है JBL के। और देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा है। आपको ये लग रहा होगा ये ऊपर प्लास्टिक है, फ्रेंड्स ये प्लास्टिक नहीं है,
ये एक रबड़ टाइप के ऊपर लगी हुई है। रबड़ के अंदर शायद प्लास्टिक हो सकता है, काफ़ी टाइट है, पर ये ऊपर रबड़ है। आप इसको इस प्रकार से ऐसे करके हिलाएंगे तो तब भी नहीं हिलेगा, क्योंकि ये रबड़ एकदम नीचे जकड़ जाती है, एकदम पकड़ लेती है सरफेस को। मैं इसे 10 में से 9.5 नंबर दूंगा। इससे ऊपर ज़्यादा ही मान के चलिए, कम का कोई सवाल नहीं बनता है, क्योंकि इसके अंदर कोई कमी नहीं है। मतलब 1600-1700 रुपये में JBL ने आपको ये समझ लीजिए फुल डिवाइस दे दी, इसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। और देखने में लुक वाइज तो आपने देख लिया कितना शानदार है। इस प्राइस रेंज के अंदर बेस ये पे आपको थोड़ा सा भी अच्छा मिल जाता, तो एक अच्छी तरीके का साउंड क्वालिटी बन जाता। अब ये जो स्पीकर है ये वाटर प्रूफ है एंड शॉक प्रूफ है। बारिश वगैरह में अगर भीग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बैटरी की बात करूँ तो 4 to 5 आवर्स ये पे आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा, ऐसा फीचर्स के अंदर लिखा गया है। बट इस तरीके का प्राइस रेंज के अंदर जो ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह आते हैं ये पे आपको 6 to 7 आवर्स बैटरी बैकअप कम से कम मिलना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन था क्या मैं स्पीकर को रिकमेंड करता हूँ? जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको एक आउटडोर के लिए स्पीकर चाहिए जो लाइट वेट, हैंडी, वाटर प्रूफ के साथ अच्छी तरीके का बिल्ड क्वालिटी वाला हो, तो ये स्पीकर आप ले सकते हैं। बट इसके कुछ कौन से, जैसे इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बैटरी बैकअप और भी अच्छी तरीका देना चाहिए था, बेस और भी अच्छा होना चाहिए था। बाकी स्पीकर ठीक ठाक है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, लाइट वेट है, हैंडी है, ये पे आप ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते तो इसको ले सकते, बट इसको इंडोर के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप आउटडोर में यूज करना चाहते हैं तो इसको मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। गाइस अब हम बात करेंगे कि Zebronic Zeb Vita Plus को आपको क्यों खरीदना चाहिए, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। उसके साथ साथ ही मैंने इसको क्यों खरीदा मैं भी ये आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो गाइस ये एक 16 वाट का ब्लूटूथ स्पीकर है और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है और इसमें आपको 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। पर्सनली मैंने इसको 6 आवर्स चलाया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें आपको 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। और गाइस Zebronic Zeb Vita Plus एक स्टेरियो स्पीकर है, तो इसमें आप बेस की उम्मीद मत करना कि आपको एकदम से एक्स्ट्रा बेस मिलेगा। इसमें आपको जस्ट अबाउट एवरेज बेस मिलेगा। उसके साथ साथ ही गाइस यहाँ पे आपको अलग अलग कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि आपको ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी मिलता है, या उसके साथ साथ ही गाइस अगर आपके फ़ोन में ब्लूटूथ आप कहीं और यूज़ कर रहे हो तो आप ऑक्स केबल के थ्रू भी यहाँ पे आप गाना बजा सकते हो इससे। उसके साथ साथ ही गाइस यहाँ पे आपको पेन ड्राइव का सपोर्ट मिलता है और आपको SD कार्ड से गाना बजाने का भी सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे FM रेडियो भी है, अगर आपके पास कोई फ़ोन या फिर पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड अवेलेबल ना हो तो यहाँ पे आप FM भी सुन सकते हो। और उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे मैं और एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इसका चार्जिंग टाइम जो है वो है 3.5 आवर्स, ऐसा वो लोग बोलते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्जर को यूज कर रहे हो। आप इसको नॉर्मल फोन के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर है फिलिप्स की ब्रांडिंग और इसके अलावा स्पीकर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऊपर है ये 2 वॉट की आउटपुट वाला स्पीकर जो काफ़ी छोटा है साइज़ में, लेकिन गाइस समझ रहे हो ना, इस स्पीकर के लुक्स के ही पैसे हैं। यहाँ पर साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलने वाली है। यहाँ नीचे मिलती है एक LED लाइट जो आपको इसका स्टेटस बताती रहेगी। उसके बाद ये स्लाइडर है जो अभी ऑफ है, इसको एक बार स्लाइड करने से ये ऑक्स मोड में चला जाएगा। यहाँ पर आप ऑक्स केबल की मदद से इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। सेकेंड टाइम स्लाइड करने से ब्लूटूथ मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद है ये ब्लूटूथ डिस्कवरी मोड वाला बटन, जिसको प्रेस करने से ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। उसके बाद पीछे है चार्जिंग पोर्ट जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो, और साथ में मिलेगा आपको ऑक्स पोर्ट जहाँ से आप इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब चलो इसको पावर ऑन करते हैं और कुछ सॉन्ग्स प्ले करके मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी बताता हूँ। साल था 1998, सुनने लगा रैप गाने, एक जरिया मिला इस दर्द को दबाने का। बाकी अगर मैं बात करूँ बेस की तो मुझे वो ठीक ठाक लगा है। इसके लोज मुझे काफ़ी कमाल के लगे हैं, लेकिन हाइज में ये स्पीकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। जैसा मैंने बताया आपको, लुक्स और डिज़ाइन के ही सारे पैसे हैं। बाकी ये स्पीकर मिल जाएगा आपको अमेज़ॉन पर। अगर आपको एक शो पीस टाइप चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। साइज़ भी काफ़ी छोटा है, तो आप आराम से इसको कैरी कर ट्रैवल कर सकते हो। एक पोर्टेबल स्पीकर को जो कि ब्लूटूथ स्पीकर है, और ये जो स्पीकर का जो ब्रांड का नाम है वो है इन्फिनिटी। यही ब्रांड जो है वो JBL का भी है, बाय हरमन। जैसे कि आप जानते होंगे, मैं आपको स्क्रीन पे भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। और जैसे कि बॉक्स पे जो लिखा हुआ है
गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था ड्यूल EQ सॉल्यूशन, मीन्स कि इसमें और भी एक मोड है। उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो पावर बटन है आप उसको 3 बार दबाएंगे। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अगर आपको यहीं से सब कुछ कंट्रोल करना हो तो ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्ले हो गया और पॉज हो गया। तो देख सकते हैं आप, डबल टैप किया मैंने और वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो चुका है। तो ये मेरे कमांड को ले रहा है। फिर से करते हैं। हे गूगल, हाउ आर यू? I'm doing great. Thanks for asking. What can I help you with? तो गाइस जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे डबल टैप करने पे वॉइस असिस्टेंट भी एक्टिवेट हो जाता है और आप इसको कमांड दे सकते हैं। और आपने देखा कि इससे ही आपको प्ले एंड पॉज करना पड़ेगा। अगर आप कॉल पे बात करते तो इससे ही रिसीव और कट करना पड़ेगा। तो ये इसके फीचर्स हैं। गाइस मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको एक चीज बाद में बताऊंगा, वो है ड्यूल EQ सॉल्यूशन। मींस कि आप इसको, इस जो पावर बटन है आप इसको 3 बार दबाएंगे ना, तो ये अपने बेस वाले मोड पे चले जाएगा। आप अभी जो है वो नॉर्मल मोड है। मैं आपको सुनाता हूँ नॉर्मल मोड कैसा है। अब मैं इसको 3 बार दबाने वाला हूं। तो आपने सुना कि डे बेस बोल रहा है, ये डीप बेस है। गाइस आपने सुन लिया साउंड इसका कैसा आता है। मैंने आपको नॉर्मल मोड भी दिखा दिया और डीप बेस वाला मोड भी दिखा दिया। जैसे आपने देखा कि नॉर्मल मोड में हल्का सा जो बेस था वो थोड़ा कम था। जैसे ही हमने जो ड्यूल EQ सॉल्यूशन को एक्टिवेट किया, मीन्स 3 बार जो पावर बटन को टैप करना है आपको, तो ये अपने आप ही आपको बोल देगा कि डीप बेस मोड पे आ चुका है। तो आपने देखा कि जो बेस था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, एनहेंस हो गया था। और जो इसकी क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। इसमें काफी अच्छी साउंड क्वालिटी है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से।